جلوہ افروز حضرت حافظ وقاری شاعر اسلام بھی ہیں. آپ کا ڈنکا ہندوستان کے کونے کونے اور گوشے گوشے میں بستا ہے، جن کا نام قاری عبد المجید صاحب قبلہ ہے. اور ہمارے ہر دل عزیز قریب نزدیکی شاعر اسلام جو کہ میرے ساتھ اکثر و بیشتر یہ پروگرام میں رہتے ہیں، جھارکھنڈ، بہار، یہاں وہاں دیگر جگہ یہ رہتے ہیں. شاعر اسلام حضرت حافظ وقاری احمد رضا صاحب قبلہ. اسی اسٹیج پر اور بھی توتیان چمنستان رضا صحابو بھی موجود ہے، ان کی آواز میں بھی کشش ہے. قاری قرآن جنہوں نے بہترین آواز میں قرآن مقدسہ کی تلاوت کی، حضرت حافظ وقاری عاشق علی صاحب قبلہ بھی منبر رسول پر جلوہ افروز ہیں. سننے والی عوام، مفکرین اسلام، اسلام میں پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين. سبحان اللہ سبحان اللہ. والشکر لمن ارحم من كل رحیم وطه وياسين وغوث الأعظم الجيلاني والبغدادي أجمعين وخواجہ معین الدین وأولیاء سابقین سبحان اللہ. المعروفی والمشہوری الشیخ امام احمد رضا خان مجدد الملتی والدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. صدق اللہ و مولانا العظیم وبلغنا على رسوله النبي المكين الأمين الرؤوف الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين وعلى الحمد لله رب العالمين. آئیے ہم اور آپ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں جھوم جھوم کر خراج عقیدت پیش کریں اور بآواز بلند درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد المادنی الجودی والکرم منبع العلم والحکم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. دو شعر ناز شریف کے میں پڑھوں گا، وہ بھی کسی نے کہا ہے، ورنہ تقریر کرنے کا میں عادی ہوں. اور تقریر یہ شادی کی غرض سے محفل ہے، سلمان کی شادی ہے، انشاءاللہ عز و جل شادی ہی پر میں بولوں گا. ویسے تو فضیلت آج کی بہت بڑی ہے، شب معراج ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آج کی رات معراج ہوئی. اس پر بھی انشاءاللہ اگر سمے ملا میں آدھے گھنٹے کے اندر دونوں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. نعت پاک پڑھنے سے پہلے ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور ایک مرتبہ کہہ دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. شعر کو سماعت کر لیں، آپ بھی سماعت کریں. کہ بگیا ماں کوئل بولے یہی، بگیا ماں کوئل بولے یہی، بگیا ماں کوئل بولے یہی، مستی میں پکارے نبی نبی، مستی میں پکارے نبی نبی. شعر سنیں،
اس میں قیمتی بڑے اور سب حدیث شریف کی روشنی میں ہے. قاری صاحب قبلہ آپ بھی سماعت کریں. بالخصوص آپ کی طرح آواز نہیں ہے. آپ تو ایسا پڑھتے ہیں کہ صحن مسجد کو جو سجدوں سے سجایا ہوتا، اپنے ہاتھوں سے نہ اس گھر کو گرایا ہوتا. باغ جنت تجھے انعام میں دیتے آقا قاری عبد المجید، گر یہی نعت تو نے مدینے میں سنایا. آپ تو ایسا پڑھتے ہیں. شعر سماعت کریں کہ بگیاں ماں کوئل بولے یہی، بگیاں ماں کوئل بولے یہی، مستی میں پکارے نبی نبی، مستی میں پکارے نبی نبی. شعر سماعت کریں اور پھر سے کہہ دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. سنیں کہ دنیا سے ستم اب دور ہوا، بے نور زماں پر نور ہوا. دنیا سے ستم اب دور ہوا، بے نور زماں پر نور ہوا. اور جگ میں پھول وہ کھلانے، ہر جگ میں پھول وہ کھلانے سب کو سینے سے لگانے. جگ میں پھول وہ کھلانے سب کو سینے سے لگانے، ہم کو سینے سے لگانے تم کو سینے سے لگانے. جگ میں پھول وہ کھلانے سب کو سینے سے لگانے. آئے بن کے سہارے نبی نبی، آئے بن کے سہارے نبی نبی. بگیاں نعرے رسالت، جشن سرکار مدینہ، نیچے دیکھ کے مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت. بہت اچھا بھائی زندہ کہ بگیاں ماں کوئل بولے یہی، بگیاں ماں کوئل بولے یہی، مستی میں پکارے نبی نبی، مستی میں پکارے نبی نبی. اور یہ بھی شعر احادیث کریمہ کی روشنی میں سماعت کریں. بڑا پیارا شعر ہے. قاری صاحب قبلہ دعاؤں سے نوازیں آپ. کہ رحمت کے وہاں پر دھار چلے. ابھی میں 1 گھنٹہ وہاں بول کے آیا ہوں قاری مسیح الدین کے گھر پہ 40ویں میں، اور کل کھن پہ بڑا بولا ہوں 1.5 گھنٹے. آج یہاں بول رہا ہوں، کل پھر انشاءاللہ بولوں گا، اور جب تک زندہ ہوں قیامت تک بولتا رہوں گا انشاءاللہ. شعر سماعت کریں. کہ رحمت کے وہاں پر دھار چلے اور لینے کو بلائے نظار چلے. رحمت کے وہاں پر دھار چلے، لینے کو بلائے نظار چلے. ارے حور بل بل جائے، ارے حور بل بل جائے گلما دھیرے دھیرے گائے. حور بل بل جائے گلما دھیرے دھیرے گائے، گلما دھیرے دھیرے گائے. حور بل بل جائے سب مل کے پکارے نبی نبی، سب مل کے پکارے نبی نبی. بگیاں ماں کوئل بولے یہی، بگیاں ماں کوئل بولے یہی، مستی میں پکارے نبی نبی، مستی میں پکارے نبی نبی. آخری شعر سماعت کر لیں. نہیں وہ کوئل ہے، وہ تضمین ہے. شعر کو حاضر کرتا ہوں، کہتے ہیں سبحان اللہ. جی. کہ بیوہ و یتیموں کے والی، بیوہ و یتیموں کے والی، اور وہ آئے تو پھیلی ہریالی. بیوہ و یتیموں کے والی، وہ آئے تو پھیلی ہریالی. اور بی بی آمینہ کے پیارے، بی بی آمینہ کے پیارے، عبداللہ کے دلارے، عبداللہ کے دلارے. بی بی آمینہ کے پیارے کہے چاند ستارے نبی نبی، کہے چاند ستارے نبی نبی. بگیاں ماں کوئل بولے یہی، مستی میں پکارے نبی نبی. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں نے جو قرآن مقدسہ کی آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ عز و جل قرآن بلاغت میں ارشاد فرماتا ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء
बस सालिहीना व हसना उलाइका रफीका। तर्जुमा इसका है, अल्लाह का इनाम नबीन पर है, अल्लाह का इनाम सिद्दीकीन पर है, अल्लाह का इनाम शोहदा पर है, अल्लाह का इनाम सालिहीन पर है, अल्लाह का इनाम तकवा परहेजगार लोगों पर है। सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत शेर बशेर सुन्नत यूं अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, आज की रात के बदले में कोई और रात ना होगी। आज की रात के बदले में कोई और रात ना होगी। आज की बात के बदले में कोई और बात ना होगी। मिलने को तो हम तुम 100 बार मिले, लेकिन मिलने को तो हम तुम 100 बार मिले, लेकिन ये जश्न ये मजमा ये मुलाकात ना होगी। ये जश्न ये मजमा ये मुलाकात ना होगी। फिर आला हज़रत अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह, आज की रात है क्या? रात में खुशबू आई। कह दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज की रात है क्या? रात में खुशबू आई। सुबह दम आई, कभी रात में खुशबू आई। आला हज़रत अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, आज की रात है क्या? रात में खुशबू आई। सुबह दम आई, कभी रात में खुशबू आई। और जब भी चली है बात तेरी या रसूल अल्लाह, जब भी चली है बात तेरी, तेरी बात में खुशबू आई। जब भी चली है बात तेरी, तेरी बात में खुशबू आई। ये सरकार आला हज़रत नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं। और जो शादी के ताल्लुक से वाकया है, मैं बयान जो करूंगा हदीस की रोशनी में, वो भी उस पे भी शेर है। आला हज़रत अर्ज करते हैं कि माँ से बढ़कर कोई एहतराम क्या होगा। माँ से बढ़कर कोई एहतराम क्या होगा। माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा। माँ से बढ़कर कोई एहतराम क्या होगा। माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा। हमें जिनके कदमों के नीचे जन्नत हो, उसके सर का मकाम क्या होगा। जिसके कदमों के नीचे जन्नत हो, उसके सर का मकाम क्या होगा। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, जिल्द नंबर सारी की सफा नंबर 63, 64, 65। मेरे नबी के निकाह से पहले ये शादी की महफिल है, सलमान भाई की शादी है। 2 तारीख को बारात जाएगी। अल्लाह ताला करम फरमाए, फजल फरमाए, रहमत और नूर की बारिश फरमाए और नबी के तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमाए। देखें, मेरे नबी के निकाह से पहले दुनिया में 4 तरह का निकाह होता था। कितने तरह का? 4 तरह का। ये चैलेंज है मेरा, जितनी बातें हैं सब दलील के साथ। मेरे नबी के निकाह से पहले दुनिया में 4 तरह का निकाह होता था। अल्लाह के नबी का निकाह, मेरे आका जवान है, आका की उम्र बिल्कुल 25 साल की है, सरकारे नामदार हैं, हजरत खदीजा को कौन नहीं जानता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और नबी हुसैन के नाना का तस्करा अक्सर आपने आलिमों से सुना होगा, बेशतर सुना होगा। जितने हाफिजो कारी आते हैं, ज्यादातर वो हुसैन के नाना पर रोशनी डालते हैं और हुसैन का तस्करा बयान करते हैं। लेकिन आज उनके नाना के सदक़े में, खुदा की कसम, आज हुसैन की नानी का भी तस्करा आप समाप्त करेंगे। ये तस्करा बहुत जरूरी है। हमारे माशरे में हजरत खदीजा का वाकया बयान नहीं किया जाता। देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा ने अपने गुलाम मैसरा को भेजा और रोका इसलिए कि झूठ बोलो। जब तुम झूठ बोलोगे तो तुम्हारा माल बिकेगा। हर सरकार ने फरमाया, खुदा की कसम मैं झूठ नहीं बोलूंगा और अल्लाह की जात पर भरोसा है कि मेरा माल सबसे पहले बिकेगा। फिर उन लोगों ने कहा, तुम मेरे बुतों की कसम खाओ, मेरे खुदा की कसम खाओ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि खुदा की कसम मैं तुम्हारे बुतों को लानत कहता हूँ। और जहाँ ज्यादा झूठे लोग मौजूद हो, वहाँ सच बोलना नबी की सुन्नत है। अब वही झूठों की बाजार में, झूठों की मंडी में मेरे मुस्तफा खदीजा का माल लगाए बैठे हैं और गुलाम मैसरा भी मौजूद है। अब देखें, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है और गुलाम मैसरा भी मौजूद है। उसकी मौजूदगी में कारी साहब के मिला, अब मेरे आका अपना माल लगाए हैं और झूठों की मंडी लगी हुई है। उन्हीं झूठों की मंडी में खुदा की कसम सारे लोगों ने देखा, सारे मक्कारों ने देखा, सारे झूठों फरोबों ने देखा कि मेरे मुस्तफा का माल सबसे पहले बिक गया और मेरे नबी ने माल बेचा। बेच करके जब लौट कर आने लगे, जब लौट कर आ गए
गए तो हजरत खतीजा ताजिरा थी, तजारत करने वाली थी, माल बेचवाने वाली थी। हजरत खतीजा ने अपने गुलाम मैसरा से पूछा, अरे बताओ कितना फायदा हुआ, अरे बताओ कितना फायदा हुआ। मैसरा रोने लगा, रो करके अर्ज करता है, अरे मेरी आका, मेरी बादशाह, मेरी मलका, सिर्फ यही पूछोगी कि कितना फायदा हुआ, अरे ये नहीं पूछोगी कि जिसके साथ गया था वो आदमी कैसा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत खतीजा ने कहा, नहीं मुझे बताओ मुनाफा कितना हुआ, फायदा कितना हुआ। तो हजरत खतीजा का गुलाम फिर से कहता है रो करके, गुलाम मैसरा, नहीं नहीं, जरा एक बार ये भी तो पूछो जिसके साथ तुमने भेजा था वो आदमी कैसा है, उसका किरदार कैसा है। तो खतीजा ने कहा, अच्छा चलो बता दो वो कैसा है। तो गुलाम रो कर कहता है, मैं गुलाम हूँ, मैं नौकर हूँ, इसीलिए मुझे बचा हुआ खाना दिया जाता है। पहले तुम लोग सोती हो, पहले तुम्हारे घर के लोग सोते हैं, फिर मुझे सुलाया जाता है। लेकिन वो मोहम्मद कुर्बान जाओ जिसके साथ तुमने काम के लिए भेजा था, पहले मुझे खिलाता था, बाद में खाता था, पहले मुझे सुलाता था, बाद में सोता था, पहले मुझे पानी पिलाता था, बाद में पानी पीता था। ये करीमाना अंदाज, ये नबी का किरदार था, ये नबी की आइडियल जिंदगी थी, नबी का जीने का ये तरीका था। अब हजरत खतीजा दिल ही दिल में मोहब्बत करने लगती है और फिर से पूछती है, अच्छा बताओ माल पहले किसका बिका, तिजारत में कितना नफा हुआ। तो मैसरा रोने लगा, रोकर कहता है, खुदा की कसम जितने झूठे वहां थे उन झूठों में, उन झूठों का इतना फायदा नहीं हुआ जितना इस सच्चे का फायदा हुआ। और सबसे पहले इसने अपना माल बेचा और बाद में माल बेच करके आप मक्के शरीफ की सरजमी पर आ गया। मोहम्मद का ऐसा किरदार है। अब देखें, हजरत खतीजा मोहब्बत के बारे पागल हो गई। हजरत खतीजा ने अपनी गुलाम, अपनी खादिमा नफीसा को भेजा और भेजा तो शादी का पैगाम कहलवा दिया। मेरे मुस्तफा मक्के की सरहद पर खड़े हैं और शादी का पैगाम लेकर के, बियाह का पैगाम लेकर के हजरत खतीजा की खादिमा नफीसा लेकर के आती है और कहती है कि अब आका, मेरी मलिका, मेरी बादशाह आपसे शादी करना चाहती है। ये उस जमाने की बात है जिसके पास अगर 4 बकरी होती तो वो अपने आप को अमीर कहलाता था, अगर 1 ऊंट हो जाता तो अमीरों का अमीर कहलाता था। उस जमाने में हजरत खतीजा के मकान में 40 नौकर और 40 नौकरानियां काम करती थी। कहते सुभान अल्लाह। कितने नौकर, कितने नौकर? 40। एक नौकर तुम रखते हो तो अपने आप को बादशाह कहलवाते हो, अपने आप को मालिक कहलवाते हो। हजरत खतीजा के घर में 40 नौकर काम करते थे और 40 नौकरानियां काम करती थी। ये खतीजा कौन है? मलिका अरब है, अरब की बादशाह है। अरब की बादशाह, ऐसी बादशाह 2-2 मर्तबा बेवा हो चुकी थी। मक्के के तमाम लड़के वहां जाते थे कि खतीजा मुझसे शादी कर लो, खतीजा मुझसे शादी कर लो, खतीजा मुझसे शादी कर लो। और खतीजा से कोई नहीं प्यार करता था, खतीजा की दौलत से सब प्यार करते थे, लेकिन खतीजा को कोई नहीं चाहता था। कुर्बान जाओ खतीजा के ऊपर। खतीजा, और सुनो, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह होना खतीजा से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये रिवायत में है। हजरत खतीजा फरमाती है कि मक्के काबे के करीब एक मेला लगता था, जिस मेले में सिर्फ औरतें हुआ करती थी, मर्दों की एंट्री नहीं हुआ करती थी। उसी मेले में मैं भी थी और तमाम मक्के की औरतें थी। उसी मजमे के अंदर एक बूढ़ा आदमी आता है और मजमे को चीरता 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 काबे के करीब आ जाता है और बड़ी मोटी किताब उठा रखा था। वो काबे के करीब आया और अपनी उसने किताब को रख दिया। पहला पेज खोला, दूसरा पेज खोला, तीसरा पेज खोला, चौथा पेज खोला, पेज खोलता गया, खोलता गया, खोलता गया, खोलता गया। औरतें दंग रह गई, या अल्लाह ये क्या बताने वाला है, या अल्लाह ये क्या करने वाला है। खतीजा कहती है उसी मजमे में मैं भी मौजूद थी, लेकिन मैंने देखा उसने कुछ देर के बाद में जब आधी किताब खोल डाला कारी साहब किबला, तो उसने कहा कि तुम लोग बड़ी खुशनसीब हो, तुम लोग बड़ी खुशनसीब हो। कहा क्यों? औरतों ने कहा क्यों? कहा इसलिए कि यहीं पर अल्लाह का रसूल आने वाला है। कहते सुभान अल्लाह, यहीं पर अल्लाह का रसूल आने वाला है। आने वाला कलमा गो नहीं है, आने वाला मुसलमान नहीं है, आने वाला नमाज पढ़ने वाला नहीं है, आने वाला कलमा पढ़ने वाला नहीं है, लेकिन कहता है कि तुम बड़ी खुशनसीब हो, यहीं पर अल्लाह का रसूल आने वाला है। और यही नहीं, औरतों ने उनको मारा और मारने के बाद मजमे से बाहर निकालना शुरू कर दिया। तो हजरत खतीजा कहती है लोग उसे मारते जाते
जाते थे, लोग उसे धक्का देते जाते थे, लेकिन मैंने मोहब्बत से नजराना दिया, मैंने मोहब्बत से नजराना दिया। और जब मैंने नजराना दिया तो उसने उसी मजमे में कहा, अगर मेरा इल्म सच्चा है तो मक्के में अल्लाह का नबी आएगा और तुम में से, तुम्हारी औरतों में से एक औरत ऐसी है जो उनके निकाह में आने वाली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक पादरी का ये इल्म है, एक कलमा गो नहीं है, बगैर कलमा वाले का ये इल्म है। उसकी किताब में लिखा था। हजरत खदीजा कहती है, जब मजमा खत्म हो गया तो मैंने काबे की तरफ मुंह किया और मुंह करके दुआ मांगा, एक काबे के मालिक, अगर वाकई इसकी बात सच्ची है तो जब तेरा हबीब आएगा तो खदीजा को उसकी गुलाम बना देना। तेरा हबीब आएगा तो खदीजा को उसकी गुलाम बना देना। आज देखो खदीजा का मर्तबा और शादी। अब देखें मेरे आका के पास नफीसा आती है, नफीसा